ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने स्टार्ट करना है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट से। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पहले बात कर चुके हैं। तो all halogens are oxidizing agent. All halogens are oxidizing agent. All halogens are oxidizing agent. एग्जाम्पल है F2, Cl2, Br2। Point number 2, down the group size increases, down the group 17, down the group 17 size increases, size increases, nuclear attraction decreases, वेलकम सर। वालेकुम, nuclear attraction decreases, difficult to accept electron, hence down the group, hence down the group oxidizing power decreases। ये देखिए, ये फ्लोरीन है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। देखो ये फ्लोरीन है और ये आयोडीन है। अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, अब इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो ये आसानी के साथ कर लेगा, इजीली एक्सेप्ट। डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अभी एक पास पेपर का क्वेश्चन आया है, उसमें ये पूछता है कि व्हेन क्लोरीन react with copper, copper chloride is formed. You can see that here copper is 0, here copper is 2 plus. So copper is oxidized or reduced? सर ऑक्सीडाइज्ड, loses electrons। Copper is oxidized. So chlorine is oxidizing agent or reducing agent? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Oxidizing agent. Very good. So this is oxidizing agent. This is oxidizing agent. This is oxidizing agent. Now, when chlorine, when we replace chlorine with iodine, no reaction.
Can you explain why iodine does not show any reaction with copper? Sir, because iodine is a weaker oxidizing agent. Very good, very good. So iodine is not enough oxidizing agent to oxidize copper. Now, always remember this DI. OPD. OPD. किसे कहते हैं OPD? हाँ भाई, OPD में कब जाते हैं? जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. जब किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो ओपीडी होता है। अच्छा बताइए, आरआईपी किसे कहते हैं? नहीं पता ईसा? Sir, rest in peace. रेस्ट इन पीस। और ओपीडी हॉस्पिटल में जाते हैं उसको कहते हैं ओपीडी। तो याद रख लेना, ओ से ऑक्सीडाइजिंग पावर, पी मींस पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, डी मींस डिक्रीजेस। आरआईपी, रेस्ट इन पीस, रिड्यूसिंग, पी मींस पावर, reducing power increases. So first point, this is for halogen. So down the group OPD, oxidizing power decreases. This is powerful oxidizing agent. This is weak oxidizing agent. Powerful oxidizing agent. Number two, this is for halite. Cl minus, Pr minus, I minus. So down the group, reducing power increases. Powerful reducing agent. Fluorine is weak reducing agent. So reducing power down the group increases. बोले बात समझ में आ रही है? Yes, sir. So reaction between halogen. Next heading is reaction of halogen with halite. Reaction of halogen with halite. So halite should be below the halogen.
This is Di. Now question, complete the reaction. Complete the reaction. So first is chlorine or fluorine. Fluorine react with chloride. Fluorine react with bromide. Fluorine react with iodide. Chlorine react with fluoride. Chlorine react with bromide. Chlorine react with iodide. Similarly, bromine react with fluoride. Bromine react with chloride. Bromine react with iodide. Next, iodine react with fluoride. Iodine react with chloride. And then iodine react with bromide. बोले ऊपर में क्या बनेगा? बोले Sir, ऊपर रिएक्शन plus होगा। Cl2. देखें वो पहले पहचाने जिसमें रिएक्शन नहीं होगा। Sir, Di chlorine मैंने and लिखा दिए। fluoride. Chlorine and fluoride का नहीं होगा. कौन सा वाला? फ्लोरीन और Fourth वाला. क्लोराइड का? नहीं, chlorine और fluoride. Fourth वाला. क्लोरीन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नो रिएक्शन, वेरी गुड। क्योंकि फ्लोरीन को ऊपर होना चाहिए। और बताएं। Sir, bromine और fluoride. ये भी नहीं होगा, वेरी गुड, नो रिएक्शन। और और bromine बोले और chloride. ब्रोमीन और क्लोराइड का भी नहीं होगा, नो रिएक्शन। और बोले और आयोडीन के तीनों ही नहीं होंगे. बिल्कुल, आयोडीन के तीनों ही नहीं होंगे, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो भाई बाकी में बनेगा क्या? तो भाई क्लोराइड बन जाएगा क्लोरीन, और फ्लोरीन बन जाएगा फ्लोराइड। ब्रोमाइड बन जाएगा ब्रोमीन, फ्लोराइड बन जाएगा फ्लोराइड। ये बन जाएगा आयोडीन, ये बन जाएगा फ्लोराइड, ये बन जाएगा क्लोराइड, ये बन जाएगा क्लोराइड, ये बन जाएगा ब्रोमीन, ये बन जाएगा आयोडीन। ये 2 बन के I2 बन जाएगा, +2Br-। ये सारे के सारे रिएक्शन। बताएं, आपको ये बात समझ आ गई है? यस सर. अब रिडॉक्स में अगला टॉपिक है रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ हैलाइड with H2SO4. Reaction of halide with H2SO4. Reaction of halide with H2SO4.
Reaction of halide with H2SO4. Very, very important reaction. First reaction is when sodium chloride reacts with H2SO4. Sodium hydrogen phosphate is formed along with HCl. Along with HCl. बताइए कितने स्टेप का रिएक्शन है? बताएं इक्वेशन, आपको कितनी इक्वेशन दिख रही है इसमें? सर एक ही क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये जो आपको NaCl दिख रहा है ना, ये हैलाइड है। इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। यहां सल्फर है +6, यहां भी सल्फर है +6, यहाँ क्लोरीन -1, यहाँ क्लोरीन है -1। बताइए क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? नो सर। पॉइंट नंबर 2, इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। इट इज नॉट अ redox reaction. बताइए H2SO4 क्या कर रहा है? क्या इसको हाइड्रोजन दे रहा है? क्या कर रहा है H2SO4? क्या H2SO4 का हाइड्रोजन कम हुआ है? जी। तो उसे एसिड कहेंगे। तो H2SO4 acts as an acid. H2SO4 act as an acid. बताइए क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2SO4? बताइए क्या H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? यस। क्या इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो ये रिड्यूस होता ना। क्या ये रिड्यूस हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो H2SO4 does not act as an oxidizing agent. याद रखिएगा HCl है, इसकी ऑब्जर्वेशन है व्हाइट मिस्टी फ्यूम। तो बताइए इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन क्या होगी? सर वाइट मिस्टी फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड। व्हाइट मिस्टी फ्यूम। ऑब्जर्वेशन इज, सर कैन वी आल्सो से दैट सॉलिड डिसअपीयर्स और समथिंग? कौन कौन सा सॉलिड? NaCl जी। हो सकता है, एक्वस हो। अच्छा। सो ऑब्जर्वेशन इज व्हाइट मिस्टी फ्यूम ऑफ HCl। बात समझ आ रही है? यस सर। अब ये दो स्टेप क्यों नहीं है, ये हम अगले हेडिंग में करेंगे। तो यहां हेडिंग बनानी चाहिए NaCl और Cl-, NaCl, NaCl और
Cl with negative sign. बोले आपको बात समझ आ रही है? Yes, sir. चलिए अब हम आते हैं रिएक्शन। या आपने जो हेडिंग डाली है वो NaCl की डाली है या Cl- की हेडिंग डाली है, राइट? नेक्स्ट हेडिंग इज NaBr और Br-। So first point, first look at the equation. This is first step. NaHSO4 plus HBr. This is step number 1. In second step, this HBr again reacts with H2SO4 and form Br2. So 2HBr, Br2 plus SO2 plus water. चेक करें इक्वेशन बैलेंस है। सर हाइड्रोजन नहीं है बैलेंस्ड। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो ये कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं? 2 और 2 4, तो इधर 2 लगा देते हैं। अब चेक करें। अब बैलेंस्ड है। अब बैलेंस है। दिस इज स्टेप नंबर 2। स्टेप 2। नाउ फर्स्ट पॉइंट, बताइए सिंगल स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है? स्टेप 2 स्टेप रिएक्शन है। इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। यार रिकॉर्डिंग हो रही है? जी सर हो रही है। इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। पॉइंट नंबर 2, बताइए फर्स्ट स्टेप में H2SO4 क्या एक्ट हो रहा है? बोले किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है? नो सर। तो इन फर्स्ट स्टेप first step is first step is not a redox reaction। तो बताइए पहला रिएक्शन कौन सा हुआ फिर? बोले पहला रिएक्शन कौन सा हुआ?
या H2SO4 क्या चीज के तौर पे एक्ट हो रहा है स्टेप 1 में? एसिड। एसिड। H2SO4 acts as an acid। ये पास पेपर का क्वेश्चन है भाई। अच्छा दूसरे में देखिए, यहां सल्फर है +6 और यहां सल्फर है +4। बताएं सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है रिड्यूस? रिड्यूस। रिड्यूस। तो बताइए H2SO4। अच्छा ब्रोमीन -से 0 हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज। तो बताइए HBr H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग। वो खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, बिल्कुल सही है। तो H2SO4 acts as an oxidizing agent। So in which step H2SO4 act as an acid? फर्स्ट स्टेप। In first step। And in which step it is act as an oxidizing agent? सेकेंड। Second। So this is step 2। बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की कहां से क्या चेंज हो रहा है? बोले +6 to ऑक्सीडेशन +4। स्टेट 6 से +4 कितने का चेंज आ रहा है? 2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर changes from +6 to +4। create change of oxidation state +2। या प्लस ना लिखें, ऐसा लिख लें 6 - 2 is 4। सही लिखा है गलत लिखा है? अबे भाई तुम लोग सो रहे हो क्या? इसका क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? जी सर आ रही है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? चेंज कितने का आ रहा है सल्फर का? जी सर समझ आ रही है। बताइए चेंज कितने का आ रहा है सल्फर में? 2। 2 का चेंज आ रहा है, शाबाश। और बताइए ब्रोमीन में क्या चेंज आ रहा है? ब्रोमीन सेकेंड स्टेप में या फर्स्ट स्टेप? सेकंड स्टेप में। -1 to 0। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा HBr ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट? HBr रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी गुड। HBr एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई HBr इज रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? देखिए इधर गौर से देखिए, HBr है व्हाइट मिस्टी फ्यूम। व्हाइट मिस्टी फ्यूम। और Br है रेडिश ब्राउन गैस। रेडिश ब्राउन गैस। तो भाई दो ऑब्जर्वेशन है। नंबर 7 ऑब्जर्वेशन इज
white misty fume and reddish brown gas disappear. बताइए डिसअपियर होगा या अपीयर होगा? Sir, appears. Appears. So reddish brown gas appears. बोले लिख लिया आपने? जी सर. अब एक क्वेश्चन आता है, why NaCl gave single step reaction with H2SO4 while NaBr gives two-step reaction. बोले Sir, because chlorine is stronger than bromine, तो फर्स्ट स्टेप के बाद ही रुक जाता है. लेकिन ब्रोमीन थोड़ा सा वीक है तो H2SO4 से ऑक्सीडाइज हो जाता है दोबारा. थोड़ा थोड़ा सा उल्टा बोल गए. देखें इधर देखिएगा, जब HCl बनता है तो H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है. तो रेस्ट इन पीस, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है. It cannot reduce H2SO4 while HBr is a good reducing agent. It can reduce H2SO4 to SO2. बात समझ आ रही है? यस सर. आप लिखेंगे HBr is a good reducing agent. Then HCl. रेस्ट इन पीस आपने पढ़ा था ना, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस. यस सर. It can reduce H2SO4 to SO2 while no reaction with HCl. HBr is a good reducing agent, then HCl, it can reduce H2SO4 to SO2 while no reaction with HCl and H2SO4. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? यस सर. यस सर. अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ये भी हो गया. चलिए अगला है, यहाँ मैंने हेडिंग करवाई थी आपको NaBr. अब हेडिंग डालेंगे NaI नाई और I माइनस, नाई और I माइनस.
पहले इसकी ऑक्सीडेशन, इसकी इक्वेशन लिखेंगे। मेरी बात गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनना। जब सोडियम आयोडाइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो भाई NaHSO4 सेम रिएक्शन प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। ऑब्जर्वेशन, वाइट मिस्टी फ्यूम, वाइट मिस्टी फ्यूम्स। This is step 1. In step 2, HI react with H2SO4। मैंने रट्टा मारा हुआ है, यहाँ 8 आते हैं हमेशा। I2 प्लस H2S प्लस H2O। तो बताइए 8 आयोडीन है तो यहाँ 4 लगा दिया। चेक करें बैलेंस है। नहीं सर, अभी बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस हो गया। अब बैलेंस हो गया। अब बैलेंस हो गया है। अब बैलेंस हो गया है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, मार्किंग स्कीम, ये स्टेप 2 है। एक रिडॉक्स में एक और इक्वेशन लिखिए, मैं वो भी लिख देता हूँ आपको। हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस H2SO4 गिव आयोडीन प्लस सल्फर प्लस H2O। कुछ इस तरह की इक्वेशन है। क्या आप में से कोई मेरी मदद करेगा इसको बैलेंस करने में? जी सर। बोले कैसे हम्म, करें? पहले तो आयोडीन पर 2 लगा लें, वो जो हाइड्रोजन आयोडाइड है। ठीक है भाई, इस पे 2 लगा लिया, इस पे 2 लगा लिया। फिर अब आयोडीन तो बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 3 यहाँ पर दो। ऑक्सीजन अब 4 है, इधर 4 लगा दिया। लगा देते हैं 8 हाइड्रोजन। एक सेकंड। अभी 8 हाइड्रोजन यहाँ पर, और यहाँ पर है 4 हाइड्रोजन। हाँ हाँ। अब हाइड्रोजन आयोडाइड के सामने वो उसको चेंज कर लें। 4 6 वहाँ पर लगा दें, वहाँ पर 6 लगा दें। 7 हाँ। ऑक्सीजन 4 है, सिर्फ हाइड्रोजन का मसला आ रहा है। हाइड्रोजन आयोडाइड के सामने वो 6 लगा देना, और फिर हाइड्रोजन, आयोडीन के सामने 3। हाइड्रोजन आयोडाइड से पहले 6 लगा दें, और आयोडीन के सामने 3। और आयोडीन से पहले 3। फिर अब मुझे लगता है बैलेंस हो गया। 4 ऑक्सीजन, चेक करें। सल्फर, 8 हाइड्रोजन। ये भी बैलेंस है ना? मुझे तो बैलेंस ही लग रही है। ये मुझे भी बैलेंस लग रही है। चलिए, बिल्कुल सही आपने किया है। चलिए आइए एक चीज और कर देते हैं। अगर इक्वेशन ऐसी लिखी हो तो फिर कैसे बैलेंस करेंगे?
प्लस सल्फर प्लस H2S प्लस H2O। अब बोले क्या करें? अब आयोडीन से ही शुरू कर लेते हैं। वापस टू आयोडीन एच से आई शुरू कर ले। हाँ, ये खाली मैं छेड़ रहा हूँ आपको, ठीक है ना? ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम। अच्छा, तो मैक्सिमम बोले मतलब क्या ऐसे करें? नहीं है कि इक्वेशन। बोले क्या करें? हाइड्रोजन आयोडाइड के आगे टू लगा दें, फिर देखते हैं क्या टू होता लगा है। दिया, टू लगा दिया। अब चार हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी चार हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन यहाँ पर, वहाँ पर चार है, तो यहाँ पर भी चार लगा दें चार एच लगा टू दिए, अब क्या करें? अब 10 हाइड्रोजन हैं यहाँ पर, 8 लगा दें फिर हाइड्रोजन आयोडाइड के सामने। एक सन तो सल्फर भी कैलकुलेट करना है। मेक सेंस। 6 लगा दो देते लगा हैं, दें। अच्छा, 6। 6 लगा देते हैं। सही है। जी, तो फिर इधर 3 लगा देते हैं, चेक करें। 8 हाइड्रोजन। लगता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप 2 लगा दें। यहाँ तो 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 सल्फर है। अब हाइड्रोजन खराब हो गए, तो इसका मतलब इधर 4 कर देते हैं। नहीं, चार, चार। क्या पहले क्या लिखा था? 6 लिखा था। जी वही सही समझ लगता है, क्योंकि हाँ वही 10 है सही। ना अब हाइड्रोजन। अब चेक करो। अब ऑक्सीजन 8 है। एक सेकंड। अब ऑक्सीजन नहीं है बैलेंस। क्या करें? लगता है H2O के साथ 8 ही लगाना पड़ेगा। एक इधर काम करते हैं, हाइड्रोजन। देखें इधर, इधर देखें, इधर देखें। ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, इससे बन रहा है I2। इस पर लगाते हैं माइनस चार्ज, ठीक है। ये H2SO4 है, इससे बन रहा है सल्फर, या H2S बना देते हैं, ठीक है। फिर H2SO4 से सल्फर भी बन रहा है। तो भाई इधर 2 लगाया, या उसी तरह से बैलेंस करें, वो आसान तरीका है जो आप कर रहे हैं। नहीं हुआ तो फिर इससे करेंगे। और बोले क्या करें? सर H2O के सामने 8 लगा दें, फिर देखते हैं क्या होता है। 16। जी यहाँ पर 8 लगा दें। हम्म। अब ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 16, 18 है, तो हम ऐसा कर हाइड्रोजन कैसे सकते हैं। बैलेंस? हाइड्रोजन नहीं हाइड्रोजन है तो तो। हाइड्रोजन तो बैलेंस नहीं है। नहीं। फिर एक सेकंड। हाइड्रोजन आयोडाइड के सामने फिर कोई बड़ा नंबर लगाना पड़ेगा। हम्म, क्या करें बोले? 14 लगाने फिर वहाँ पर, किससे पहले? हाइड्रोजन आयोडाइड से पहले। 14 लगा दिया। फिर फिर अब आयोडीन के सामने फिर वो फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन से पहले नहीं फ्रैक्शन नहीं लगाना पड़ता। नहीं, 7 लगा देंगे। 7 किससे पहले लगा दूं 7? आयोडीन से पहले। 7 लगा दिया। फिर अब मतलब बैलेंस्ड है। 16, 18। मुझे लगता है बैलेंस्ड हो गया। जी सर, अब बैलेंस है ना। अब बैलेंस है, आइए चेक करते हैं।
14 हाइड्रोजन, 8 2 16, नहीं 14 और 4 18, 18 हाइड्रोजन, 8 2 16 17 18, बैलेंस। 14 आयोडीन, 14 आयोडीन, 2 सल्फर, 2 सल्फर, 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, बैलेंस। भाई ये मैक्सिमम में ऐसे हो सकता है, ठीक है, ये मैक्सिमम है, अल्लाह के हुक्म से ये हो सकता है। अब आप मुझे बताइए, वापस इसी पे आते हैं, बताइए कितना स्टेप रिएक्शन है? बोले थ्री। NaI, शाबाश, NaI गिव्स 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन। बताइए पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप में H2SO4 क्या है? एसिड। एसिड। ये MCQ का सवाल है। इन फर्स्ट स्टेप H2SO4 act as an acid. Step next. In second step, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। in second step, H2, yes, exactly. H2SO4 act as an oxidizing agent. अच्छा सल्फर देखें, सल्फर इधर +6 है, इधर -2 है, तो बताइए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेंज हो रही है? फोर। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कहां से क्या हो रही है, बताएं, जल्दी बताएं। 6 + 6 2 + 2 तो 4 हो जाएगी। 4 चेंज। देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट of sulfur changes from +6 to -2। बताइए कितने का चेंज आ रहा है? प्लस बताएं कितने का चेंज आ रहा है? 8 का हो चेंज आ रहा गया है। है। इससे साबित क्या हो रहा है? कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है? सोडियम आयोडाइड। आई मीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयोडाइड इस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। और आपने वैसे तो पढ़ा था RIP, तो आप लिखेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड इज पावरफुल reducing agent. It converts sulfur from +6 to -2, while HBr converts from +6 to +4। तो भाई हम यूं लिखेंगे H2SO4 convert into SO2। चेंज कितने का आ रहा है? 4 का, सॉरी 2 का, +6 टू +4, चेंज आ रहा है 2 का। 2 का चेंज आ रहा है। तो ये किसने किया? HBr ने। लेकिन जब यही रिएक्शन आप दोबारा करेंगे और यहाँ HBr नहीं होगा, यहाँ HI होगा,
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2S में, और यहां होगा -2 विच क्रिएट डिफरेंस ऑफ 8। तो भाई हाइड्रोजन आइड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना, रिड्यूसिंग एजेंट, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। बोले बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है यार? सर समझ आ रही है। यस सर। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। अच्छा, ऊपर वाली की ऑब्जर्वेशन लिखी थी हमने, बिल्कुल लिखी थी। अब इसकी होगी ऑब्जर्वेशन, अगर आप ये लिखेंगे तो इसमें पर्पल फ्यूम है, अगर आप H2SO4 लिखेंगे तो सड़े हुए अंडे की स्मेल, रोटन एग स्मेल। लेकिन अगर आपने नीचे वाला सल्फर लिख दिया तो व्हाइट पीपीटी, व्हाइट येलो पीपीटी। तो भाई यकीन माने ये एमसीक्यू का ही सवाल है, ऐसे ही आया हुआ है। ऑब्जर्वेशन इज व्हाइट पीपीटी, नंबर 2 पर्पल फ्यूम, येलो पीपीटी, येलो पीपीटी। बताइए व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी किसके आ रहे हैं? व्हाइट पीपीटी या व्हाइट मिस्टी फ्यूम? व्हाइट मिस्टी फ्यूम, व्हाइट मिस्टी फ्यूम। बताइए व्हाइट मिस्टी फ्यूम किसके आ रहे हैं? हाइड्रोजन आइड। हाइड्रोजन आयोडाइड, वेरी गुड। बताए पर्पल फ्यूम किसके आ रहे हैं? आयोडीन। आयोडीन के। येलो पीपीटी किसके आ रहे हैं? सल्फर के। सड़े हुए अंडे की स्मेल आ रही है, H2S। वो किस? H2S। इंतहाई गटर के जैसी बदबू होती है, बेइंतहा खराब। बेटा ये याद रख लेना, ये जितना भी मैंने कराया है ना, ये ग्रुप 17 में भी आता है, रिडॉक्स में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, ग्रुप 17 उसमें आएगा। ईसा देखो, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मैं बहुत स्लो चला रहा हूँ भाई, जब मैं इनऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा ना, काफी चीजें तुम्हारी रिकॉल हो जाएंगी जो सब मैंने कराई हुई होंगी। सर अभी ये कौन सा चैप्टर है? ये हमारा पहला हमने एटॉमिक किया, दूसरा हमने बॉन्डिंग। बॉन्डिंग किया, तीसरा स्टेट्स ऑफ मैटर किया, चौथा चल रहा है। इसके बाद हम कल इंशाल्लाह काइनेटिक स्टार्ट करके खत्म भी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर हाँ लेकिन इनर ये चैट। ग्रुप 17 से ही है ज्यादातर। मैंने ग्रुप हाँ 17 ये पढ़ा ग्रुप, है हाँ तो ये। पढ़ लिया ना। लेकिन देखो मैंने तुम्हें खुद सोचो, जो मैंने रिडॉक्स में तुम्हें करा दिया, तो ये ग्रुप 17 में आएगा तो कितना आसान लगेगा। जी। चलो अगला कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद NaOH। ये भी तुमने किया होगा ग्रुप 17 में, जी लेकिन है भी ये रिडॉक्स। सर ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है ना? एग्जैक्टली यही है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किस में आता है? रिडॉक्स में तो आता है। जी ग्रुप 17 में भी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें दो केसेस हैं। पहला केस है विथ कोल्ड NaOH, और दूसरा केस है विद हॉट NaOH। देखिए, यहां देखिए पहले मैं आपको याद करने का भी तरीका सिखाता हूं।
ये गैस है, ये कोल्ड है। याद रखिएगा, NaCl बनेगा नमक, और बनेगा नाक्लो, ना, ना, Na, ना, किलो, ना किलो और पानी। बताइए राइट साइड पे कितने सोडियम हो गए? 2। 2। तो लेफ्ट साइड पे 2 लगा दें, इक्वेशन बैलेंस। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। आइए हम हॉट की भी इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर हम कहानियां ड्रामे करेंगे। अब ये NaOH हॉट है, तो भाई वापस नमक बनेगा, और बनेगा नाक्लोट, नाक्लोट। आपको 8 की आवाज आ रही है? नाक्लोट। बोले 8 की आवाज आ रही है? जी सर। वो इसलिए आ रही है क्योंकि 3 इधर आएगा, +5 ऊपर आएगा। क्लोरीन पे +5, 5 + 3 8, नाक्लोट और पानी। बताइए एक साल में कितने दिन होते हैं? तो 365। तो यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 5, सबसे आखिर में 3 और लिखा। इक्वेशन बैलेंस, और याद भी हो गई। बोले ईसा, समझ आ रही है बात? यस सर। याद हो जाएगी आराम से। जी। या दोबारा लिखाऊं? नहीं सर, सही है। अच्छा, अब एक बात बताइए, यहाँ क्लोरीन 0, यहाँ क्लोरीन -1, यहाँ क्लोरीन +1, यहाँ क्लोरीन 0, यहाँ क्लोरीन -1। तो बताइए दोनों रिएक्शन में क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस? सर दोनों हो रहे। ऐसे बदतमीज रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इन बोथ रिएक्शन, in both reactions NaOH, in both reaction chlorine is oxidized as well as reduced. Such reaction is called, such reaction is called disproportionation reaction. Such reaction is called disproportionation reaction. बताइए with cold NaOH, oxidation state of chlorine changes from 0 to +1 and -1, ऐसा ही है? यस सर। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बताइए विथ हॉट 0 to -1 एंड, and 0 to +5। शाबाश, 0 to -1 एंड +5, बिल्कुल सही लिखा आपने। अच्छा, आप में से कोई ब्लीच का फॉर्मूला बता सकता है? ब्लीच, ब्लीच, ये भी पास पेपर में आया हुआ है। ब्लीच का फॉर्मूला, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लीच। भाई गूगल करके भी बता सकते हो यार। सर यही है NaClO। NaCl और NaClO।
हाँ, ना किलो जी और NaCl है ना, जी। बोले ऐसा ही है। यस सर। तो आप अगला पॉइंट लिखेंगे कि मिक्सचर ऑफ, ये भी पास पेपर का सवाल है, NaCl एंड ना किलो मिक्सचर ऑफ NaCl एंड ना किलो is called bleach. ब्लीच। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है। यस सर। सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है, वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, नाम नहीं है मेरे ख्याल में। मैंने सभी को मोल, अच्छा मोल रेशियो भी आपको पता चल गई है। अगर कहा जाए क्लोरीन और NaOH, क्योंकि मोल के न्यूमेरिकल में आता है, मोल रेशियो क्लोरीन और NaOH, बोले 1:2 है इन बोथ रिएक्शंस, बोले ऐसा ही है। बोलो ना यार, ऐसे ही है कि नहीं है। आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही। सर जी ऐसे ही है। ऐसा ही है। तो अगर आपसे कहा जाए क्लोरीन और NaCl का क्या रेशियो है, क्लोरीन और NaCl का चेक करें, 3:5 जी और 1:1, 1:1 और 3:5, 3:5। ये कोल्ड में, ये हॉट NaOH में। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हम करने जा रहे हैं कैटालाइटिक कन्वर्टर। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, कैटालाइटिक कन्वर्टर। कैटालाइटिक सर ये तो कन्वर्ट, नाइट्रोजन सल्फर का है ना? ये नाइट्रोजन एंड सल्फर का है। क्या बात है आपकी, आप देख रहे हैं कितना इंटीग्रेटेड पढ़ा रहा हूं मैं आपको। अभी आप थर्ड चैप्टर पे हो, मैंने कौन कौन सी चीजें करा रहा हूँ। तो जी आपके काम को आसान हो जाएगा, आपको एक इंटीग्रेटेड पढ़ने को मिल रहा है, कैटालाइटिक कन्वर्टर। अब कैटालाइटिक कन्वर्टर में क्या होगा, आप गौर से देखिए। ये कार इंजन है, मेरे ख्याल में कैटालाइटिक कन्वर्टर की हेडिंग सही नहीं लग रही, कार इंजन लिखना चाहिए। कैटालाइटिक कन्वर्टर एंड कार इंजन, कैटालाइटिक कन्वर्टर एंड कार इंजन। ये कार इंजन है। पता है इंजन में क्या क्या चीजें जाती हैं, एक हवा जाती है और एक फ्यूल जाता है। बताएं फ्यूल में क्या क्या चीजें जाती हैं, एयर में क्या क्या चीजें जाएंगी ज्यादा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और फ्यूल में क्या जाएगा, कार्बन जाएगा, हाँ सल्फर जाएगा, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन तो ऊपर लिख लिया है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन का क्या है, पानी बना लेगा, बेकार चीज है ना। सर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन तो तोड़ दिया ना, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऊपर लिख लिया है।
तो देखिए पहला रिएक्शन इसके अंदर होगा, गौर से देखिएगा। पहला रिएक्शन होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे और बना लेंगे NO। तो बोले पहली गैस कौन सी रिलीज हो गई? NO। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। इसी तरह कार्बन ऑक्सीजन से मिलेगा और क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो बना नहीं सकता क्योंकि इंजन के अंदर तो लिमिटेड ऑक्सीजन होती है। तो दूसरी गैस निकल रही है कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर भी होगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड तीसरी गैस बन गई। बोले यहां तक बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। अब आपसे वो कहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज निकालो। यहाँ 0, यहाँ +2, यहाँ 0, यहाँ +2, यहाँ 0, यहाँ +4। बोले आपको बात समझ आ रही है? यस सर। मैंने सब जगह चेंजेस नीचे लिख दी हैं। अच्छा अब क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, इसकी भी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी। इसका कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे ही जाएगा। A lot of energy is required to convert SO2 into SO3। तो भाई एक NO बन जाएगा NO2 में, CO बन जाएगा CO2 में, और SO2 रिमेन। कैसे हुआ ये हुआ है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। यहां भी जाएगी। इसकी इक्वेशन में ऊपर लिख रहा हूं, ये देखें, NO प्लस हाफ O2 गिव NO2। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होगा, यहाँ है +2, यहाँ है +2, यहाँ आ जाएगा +4, यहाँ आ जाएगा +4। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। नहीं, नहीं आ रही बात समझ? समझ आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा भाई, अब 3 गैसें हवा में आ गई हैं, ठीक है। अब ये है क्लाउड। अब जैसे ही ये NO2 हवा में जाएगा, ये SO2 के साथ रिएक्ट करके इसको SO3 में और खुद NO में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। फिर ये NO आधे ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और NO2 बना लेगा। बताइए वो कौन सी चीज है जो कंज्यूम हो रही है और रिप्रोड्यूस हो रही है? सर NO। NO या NO2? NO2। NO2। तो आप तो लिखेंगे कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। वो कैटलिस्ट होगा, शाबाश। तो आप लिखेंगे NO2 कंज्यूम एंड reproduce, so act as catalyst। तो एक्ट एज कैटलिस्ट। लेकिन देखिए एक जरा सी होशियारी करी जा सकती है, एक जरा सी होशियारी की जा सकती है। उस होशियारी से पहले बताइए, आपने आज सबसे पहले हवाई कैटलिस्ट पढ़ा है, तो NO2 इज हवाई कैटलिस्ट।
ये मेरी टर्मिनोलॉजी है। हवा में एक कैटलिस्ट आपने जिंदगी में फर्स्ट टाइम पढ़ा है, NO2 इज हवाई कैटलिस्ट। आप इसे एटमॉस्फेरिक कैटलिस्ट भी लिख सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। जी सर, बात समझ आ रही है। बात में अब देखो रायना, और एक छोटी सी हम काम करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, ये देखें। हम इसको दोबारा लिखते हैं। हमने इसको दोबारा लिखा। हमने यहाँ इसको दोबारा लिखा। अब हमने करा क्या, देखें आपके सामने, में किसी इक्वेशन को मिटा नहीं रहा, किसी इक्वेशन को मिटा नहीं रहा, सिर्फ इसकी तरतीब चेंज कर दी है। आप नोट करिएगा मैं कर क्या रहा हूं। अब बताइए वो कौन सी चीजें जो कंज्यूम भी हो रही है और रिप्रोड्यूस भी हो रही है? सर NO। अब NO हो गया, तो भाई NO भी कैटलिस्ट है, NO2 भी कैटलिस्ट है। एग्जाम में बच्चा याद करके जाता है NO इज कैटलिस्ट। बच्चा याद करके आता है NO2 कैटलिस्ट, NO2 कैटलिस्ट। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाती है। बच्चा लिख के आ जाता है NO2 इज कैटलिस्ट, वो गलत हो जाएगा। इक्वेशन देख के काम करेंगे, इक्वेशन देख के। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब आप देखें, यहाँ नाइट्रोजन है +4, यहाँ नाइट्रोजन है +2, यहाँ है +4, यहाँ है +6, यहाँ है +2, यहाँ है +4। क्या आप बता सकते हैं अब हवा में कौन कौन सी गैसेस हैं? क्या आप बता सकते हैं हवा में कौन कौन सी गैसेस हैं? सर NO2। NO2। क्लाउड में होता है पानी, ये बनाएगा HNO3, HNO2। नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड, ये कहलाता है नाइट्रिक एसिड, और ये कहलाता है नाइट्रस एसिड। देखें क्या इक्वेशन बैलेंस है? जी सर। अब ये बन जाएगा एसिड रेन, एसिड रेन। आपको दिख रहा होगा इसमें SO2 भी है, SO3 मिलेगा पानी के साथ तो बनाएगा H2SO4, ये भी एसिड रेन। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये बनाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, एसिड रेन। आइए इसकी थोड़ी सी समरी कर लेते हैं रिडॉक्स के हवाले से। पहले हम बात करते हैं कार्बन की। पता है कार्बन से क्या बना था?
कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना था? कार्बनिक एसिड। H2CO3, कार्बोनिक एसिड। आइए ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ये 0 है, ये +2 है, ये +4 है, और यहाँ पे क्या है निकालनी पड़ेगी? 2H प्लस कार्बन +3 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। 2 प्लस कार्बन +-2 इज इक्वल टू 0। कार्बन -6 +2 इज इक्वल टू 0। कार्बन इज इक्वल टू +4। तो बताइए पहले वाले एरो पे ऑक्सीडेशन लिखूं रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का सिंबल होता है ये। दूसरे वाले में क्या लिखूं? ऑक्सीडेशन। और दूसरे में कुछ नहीं लिखूंगा। तो भाई इसका मतलब है ऑक्सीडेशन। पहले वाले में 2 का चेन, दूसरे वाले में 2 का चेन, उसके बाद कोई चेन नहीं। अब आइए दूसरा देखते हैं, सल्फर। पता है सल्फर से क्या बना? सल्फर। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। फिर बना सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर क्या बना? H2SO4। देखें सल्फर 0, फिर +4, फिर +6, फिर +6। तो भाई यहां लिखेंगे ऑक्सीडेशन, यहां भी ऑक्सीडेशन, यहां कुछ नहीं लिखेंगे। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। दूसरा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से बना NO, NO से बना NO2, NO2 से बना HNO3 और HNO2। इस पे 0, इस पर +2, इस पर +4, इस पर +5, +3। बोले कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्रोपोर्शन। शाबाश। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, because nitrogen is oxidized from +4 to +5 and reduced from +4 to +3। बोले यहां तक बात समझ आ रही है? यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये तो देता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वो थोड़ा सा कैटालाइटिक कन्वर्टर भी लिख लेते हैं। कैटालाइटिक
कन्वर्टर। अब कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, उसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और नाइट्रोजन गैस में। यहाँ है +2, यहाँ है 0। बताइए ऑक्सीडाइज या रिड्यूस? रिड्यूस। रिड्यूस्ड। तो भाई आगे बढ़ते हैं। आपने कहा ये रिड्यूस्ड। चलिए कार्बन को देखते हैं। यहाँ कार्बन है +2, +2 से +4, ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड। तो ये सीधा सीधा आपका ये भी रिडॉक्सेशन है। सो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, रिडॉक्सेशन इन कैटालाइटिक कन्वर्टर। इन कैटालाइटिक कन्वर्टर। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। मैंने इसके पास पेपर भी करा दिए आपको, सारा का सारा करा दिया। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ आ गई है? यस सर। अब जो हम कल करेंगे ना, उसका नाम है केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक A2 में भी यही है। चलिए, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है? नो सर। तो उसका नाम रख देते हैं केमिकल काइनेटिक। ओ भाई, 2023। चलिए, अब कल इंशाल्लाह इसको करेंगे, कल 3:30 बजे, ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज।